बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है हमारे जज्बात की दुनिया। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमारे जज्बात। जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए। जज्बात में हम आहंगी के असरार, अपनी खामियों का एहसास, मिजाज तब्दील किया जा सकता है। इन निकात की मदद से हम हमारे जज्बात की दुनिया समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सेशन में हमने हमारे जज्बात और इंसानी मिजाज के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया। साथ ही हमने जज्बात में हम आहंगी किसे कहते हैं और जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा की जाए इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। गुस्सा, खुशी, गम, हसद, मायूसी और डर, ये सब हमारे जज्बात हैं। तो हमने देखा इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। इंसान कभी गुस्से की हालत में होता है, कभी किसी को दिल से माफ कर देता है, कभी खुदगर्जी पर उतर आता है, कभी किसी पर उसे प्यार आता है, कभी किसी को देखकर हसद करने लगता है, कभी दूसरों के लिए ईसार व कुर्बानी के जज्बात इंसान के अंदर मंडलाने लगते हैं। वो दूसरों की मदद करता है। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है। इंसान ने अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद की, तो इंसान गौर व फिक्र करता रहता है। इंसान जहाँ गौर व फिक्र का आदी है वहीं जज्बाती भी है।
یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کریں. اپنی سوچ اور جذبات کے درمیان تال میل پیدا کرنا بہت ضروری ہے. جذباتی ہم آہنگی کسے کہتے ہیں؟ جذبات پر قابو پانے، مختلف جذبوں کے درمیان تال میل پیدا کرنے اور جذبات کو مناسب انداز میں ظاہر کرنے کو جذباتی ہم آہنگی کہتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے جذبات میں ہم آہنگی پیدا کرنا کیوں ضروری ہے. جذبات میں ہم آہنگی پیدا ہونے سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. جذبات میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے ہماری شخصیت متوازن بنتی ہے. آپ جانتے ہیں مختلف جذبوں کے درمیان تال میل پیدا کرنا، جذبات پر قابو پانا اور جذبات کو مناسب انداز میں ظاہر کرنے کو جذباتی ہم آہنگی کہتے ہیں. جذباتی ہم آہنگی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک غصہ کرنا ہے. اگر کسی بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک غصہ کرنا ہے. اگر کسی چیز کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو تو جذباتی ہم آہنگی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو پانے کے لیے کس قدر بے چین ہونا ہے. اس طرح سوجھ بوجھ کے ذریعے ہم جذبات پر اپنے قابو پاتے ہیں اور اس طرح ہماری شخصیت متوازن بنتی ہے. جذبات میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے ہمارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت انسان میں ہونا بہت ضروری ہے. اس بات کو مختلف مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اسکول ہو یا جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر دوستی ختم ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں، ہمارے مسئلے کو سمجھیں، مگر ہم خود دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ کی سہیلی ایک دن خاموش بیٹھی ہو، کسی سے بات نہ کرے. غلط فہمی کی بنا پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آج یہ کیوں اکڑ رہی ہے؟ اچھا کل پرچے میں اسے زیادہ نمبر ملے ہیں اس لیے آج یہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی. مگر حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا اس کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو. تو آپ کے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ایک دن اگر کسی کا کوئی رویہ ہمیں عجیب لگے یا کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگے تو فوراً ہمارے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. لیکن اگر ہمارے جذبات میں تال میل ہے، جذبات میں ہم آہنگی ہے، تو ہم فوراً کسی بات پر ریاکٹ کرنے کی بجائے
उसे समझने की कोशिश करते हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं। तो इस तरह समझने की सलाहियत की वजह से आप अपने साथियों के और आपके आसपास जो लोग हैं उनके मसाइल को समझते हैं और हल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमारे अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है। दूसरों को समझने की सलाहियत बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को सिर्फ जज करते रहें, उसने ऐसा क्यों किया, आज उसने मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया, और हम खुद ही अपने कोई रीजंस, अपनी कोई वजूहात पेश करते हैं। मगर जज्बात में हम आहंगी होने से आप दूसरों को समझते हैं। तो इस तरह जब हम दूसरों को समझते हैं तो गलतफहमियां भी पैदा नहीं होती, और अगर गलतफहमियां ना होंगी तो यकीनन ज़िंदगी खुशगवार होगी, दोस्ती में दरार नहीं आएगी और हम अपने साथियों के साथ, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रह सकेंगे। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हम नामुवाफिक हालात का मुकाबला कर पाते हैं। मुवाफिक यानी मुनासिब, ठीक, और नामुवाफिक यानी जो मुनासिब ना हो, ठीक ना हो। तो हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी कभी ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं। आप उन मुसीबतों और परेशानियों का मुकाबला किस तरह करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और एक छोटा मसला बड़ी मुश्किल का रूप इख्तियार कर लेता है। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हम नामुवाफिक हालात का भी सोच समझकर सूझबूझ के साथ मुकाबला कर सकते हैं। कितनी भी मुश्किल आए, हम सुकून के साथ उस मसले पर गौर व फिक्र करते हैं, डरने की बजाय, पैनिक होने की बजाय उस मसले के हल के मुतालिक सोचते हैं। इस तरह जज्बात में तालमेल होने से हम नामुवाफिक हालात का मुकाबला कर पाते हैं। अक्सर आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। मसलन अगर अचानक लिफ्ट रुक जाए तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और इस तरह उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर रास्ता भूल जाए और जैसे उन्हें इसका एहसास हो कि अरे वो रास्ता भटक गए हैं तो डर जाते हैं। इन हालात में अगर वो डरने की बजाय, पैनिक होने की बजाय अपने जज्बात पर काबू रखें, सूझबूझ से काम लें तो वो उस मुश्किल से, उस मसले से निकल सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इस बात पर उन्हें नाराज होना है या चीखना चिल्लाना चाहिए। तो इस तरह गुस्से में वो कभी कभी बुरे कलमात भी मुंह से निकालते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है और बाद में उन्हें खुद भी अफसोस होता है। अक्सर ट्रैफिक में आपने देखा होगा कुछ लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं,
कभी कभी हाथापाई की भी नौबत आ जाती है ड्राइवर्स के दरमियान। तो ये सब इसलिए है कि इन्हें अपने जज्बात पर काबू नहीं है, इनके जज्बात में हम आहंगी नहीं है। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमारी शख्सियत मुतवाज़न बनती है, हमारे अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है, हम नामुवाफिक हालात का मुकाबला कर पाते हैं। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से खुद खुश रहते हैं। अच्छी सेहत के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से दूसरों को करीब करने की खूबी में इजाफा होता है। अभी हमने देखा हमारे अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है, जिसकी वजह से दूसरे हमारे करीब आते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। इस तरह दूसरों को करीब करने की खूबी में इजाफा होता है। जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से अलग थलग रहने का रुझान खत्म होता है। बिला वजह दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, उनके ऐब बयान करना, हसद करना और उनकी कामयाबी बर्दाश्त ना करना, इन बुराइयों से हम निजात हासिल कर पाते हैं, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को करीब करने की खूबी में इजाफा होता है, अलग थलग रहने का रुझान ख़त्म होता है। तो देखा आपने जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से किस तरह हमारी शख्सियत में तवाज़ुन पैदा होता है, हमारी शख्सियत मुतवाज़ुन बनती है। गम और खुशी की तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। हम में से हर एक शख्स को कभी ना कभी किसी बात पर गुस्सा ज़रूर आता है। कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए, कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो गुस्सा आता है। किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफी हुई हो तो उसे देखकर भी हमें गुस्सा आता है। गुस्सा बार बार आए और आप गुस्से से बेकाबू होने लगें तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इसके बुरे नताइज रूनुमा होते हैं। हम गुस्सीले और ज़िद्दी हो जाते हैं, मेल जोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। गुस्से की हालत में हम लोगों का दिल दुखा बैठते हैं। जोश व जज्बे की कमी, दर्द सर और बेख्वाबी जैसे असरात का सामना करना पड़ता है। गुस्सा बार बार आए और आप गुस्से से बेकाबू होने लगें तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इसके बुरे नताइज रूनुमा होते हैं। हम गुस्सीले और ज़िद्दी हो जाते हैं। इंसान अलग थलग रहने लगता है, मेल जोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। गुस्से की हालत में हम लोगों का दिल दुखा बैठते हैं।
غصے کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. غصے کی حالت میں کبھی کبھی ہاتھا پائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اور اس حالت میں ہم دوسروں کا دل دکھا بیٹھتے ہیں. حالانکہ ہمیں بعد میں خود افسوس ہوتا ہے، مگر زبان سے نکلی ہوئی بات لوٹ کر تو نہیں آ سکتی. لہٰذا ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے. جوش و جذبے کی کمی، درد سر اور بے خوابی. بے خوابی یعنی نیند کی کمی، نیند نہ آنا. تو اس طرح زیادہ غصہ کرنے سے کام میں دل نہیں لگتا. جوش اور جذبے کی کمی، درد سر اور بے خوابی جیسی شکایتیں ہونے لگتی ہیں. اور اس کا اثر صحت پر ہوتا ہے. غصے کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. طاقتور وہ ہے جو غصے کو اپنے قابو میں کر سکے. جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، when one of you is angry, he should be silent. Anger is only one letter short of danger. Anger does not demand action. When you act in anger, you lose self-control. تو جب غصہ آئے اس وقت ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. درسی کتاب میں پیج نمبر 104 پر کچھ معاملات دیے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں. جذبات پر قابو پانے کے لیے درج ذیل معاملات میں جو چیزیں اچھی ہیں ان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے، اور جن کاموں کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے ان کے آگے کراس نشان لگائیے. رمیش نے سمیر کو بتایا کہ امت نے اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا ہے، لیکن سمیر نے یہ طے کیا کہ وہ جب تک حقیقت معلوم نہ کر لے کچھ نہ کہے گا. تو اب آپ بتائیے، سمیر نے یہ جو طے کیا کہ وہ جب تک حقیقت معلوم نہ کر لے کچھ نہ کہے گا، اس کا یہ طے کرنا صحیح ہے یا غلط؟ سمیر نے بالکل صحیح طے کیا. رمیش نے سمیر کو بتایا کہ امت نے اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا ہے. امت نے بذات خود سمیر سے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. یہ تو رمیش نے آ کر سمیر کو بتایا کہ امت تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، کچھ برا بھلا کہا ہے اس نے. لیکن سمیر دیکھیے اس کو اپنے جذبات پر کتنا قابو ہے. اس نے فوراً کوئی ری ایکشن دینے کی بجائے، امت کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کیا؟ یہ طے کیا کہ وہ جب تک حقیقت معلوم نہ کر لے کچھ نہ کہے گا. اس کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے. شگفتہ اور نزہت
पढ़ाई में यकसां तरक्की कर रही हैं। टीचर ने शगुफ्ता के मजमून की खूब तारीफ की। उस पर नुज़त को खूब गुस्सा आया और उसने तय किया कि वो शगुफ्ता से बात नहीं करेगी। शगुफ्ता का ये तय करना क्या दुरुस्त है? आप क्या सोचते हैं? अब देखें, शगुफ्ता और नुज़हत दोनों पढ़ाई में यकसां तरक्की कर रही हैं। टीचर ने शगुफ्ता के मजमून की खूब तारीफ की। इस पर नुज़हत को बहुत गुस्सा आया। हालांकि नुज़हत को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हो सकता है ये मजमून शगुफ्ता ने बहुत उम्दा लिखा। कोई और मजमून लिखने पर या किसी और काम पर टीचर नुज़हत की भी तारीफ करें। इसलिए इस एक वाक़े पर शगुफ्ता के लिए दिल में हसद रखना ये मुनासिब नहीं है, और ये तय करना कि वो शगुफ्ता से बात नहीं करेगी ये तो और भी नामुनासिब है। शगुफ्ता ने कोई गलत काम तो नहीं किया। उसने तो एक अच्छा मजमून लिखा और टीचर ने उसकी खूब तारीफ भी की। इस पर नुज़हत को खुश होना चाहिए, शगुफ्ता को मुबारकबाद भी देनी चाहिए इतना अच्छा मजमून लिखने पर, और ये तय करना चाहिए कि आइंदा वो भी इसी तरह कुछ अच्छा करने की, अच्छा लिखने की कोशिश करेगी। तो नुज़हत को गुस्सा आना और उसका ये तय करना कि वो शगुफ्ता से बात नहीं करेगी ये ठीक नहीं है। उसे ये काम नहीं करना चाहिए। दिनेश ने मनोज के बैग से पेन और पेंसिल निकालकर कहीं छुपा दी। फिर दिनेश ने मनोज से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। दिनेश ने बिल्कुल ठीक किया। गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, मगर उन गलतियों पर पशेमान होना, माफ़ी मांगना ज़रूरी है, और दिनेश ने ऐसा ही किया। पहले तो मनोज के बैग से पेन और पेंसिल निकालकर छुपा दी, मगर फिर मनोज से माफ़ी मांगी और ये भी यकीन दिलाया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। दिनेश ने माफ़ी मांगकर बिल्कुल ठीक किया। एक और मामला देख लेते हैं। सुनीता को अपनी अम्मी के साथ बाजार जाना था, लेकिन सुनीता की अम्मी को किसी वजह से जल्दी बाजार जाना पड़ा। उसे अपनी अम्मी पर गुस्सा आया, लेकिन सुनीता ने अपनी अम्मी से जल्दी जाने की वजह पूछी। बात समझ में आते ही उसका गुस्सा खत्म हो गया। तो यहाँ देखें, सुनीता ने अपनी अम्मी से बात की, उनके जल्दी जाने की वजह पूछी। कोई ना कोई वजह रही होगी, इसीलिए प्रोग्राम तय होने के बावजूद सुनीता की अम्मी जल्दी बाजार चली गईं, सुनीता को साथ लिए बगैर चली गईं। शुरुआत में सुनीता को अपनी अम्मी पर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी अम्मी से जल्दी जाने की वजह पूछी। बात समझ में आते ही उसका गुस्सा खत्म हो गया। ये सुनीता ने बिल्कुल ठीक किया। याद रखिए बच्चों, बातचीत से हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, तो हमें कभी भी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं करना है। कोई मसला है तो उस पर बैठकर हमें बातचीत करनी है और बातचीत के ज़रिए उस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि सुनीता ने किया। अपनी अम्मी से जल्दी जाने की वजह पूछी,
بات سمجھ میں آ گئی اور اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ ان مختلف مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جذبات میں ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ جذبات میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے ہماری شخصیت متوازن بنتی ہے، ہمارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ہم خود خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو قریب کرنے کی خوبی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اپنی خامیوں کا احساس اور مزاج تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔